Hello everyone. So in this lecture we are going to solve a numerical problem on decision tree. Okay. In the previous lecture I have already explained about what is a decision tree, what are the various techniques which we have to use for solving a decision tree. That means there is a criteria. There are three criterias. Um, Entropy, Gini index, information gain, and we have to apply these criterias for splitting a decision tree. Okay, and then I have also discussed what are the assumptions for the decision tree. Okay, in this lecture we will be solving a numerical problem based upon it. Fine. So you can see a data set: day, outlook, temperature, humidity, wind, and decision. In this data set, the target variable is decision, which is having two values, no and yes. Rest are the weather data set features, outlook, temperature, humidity, and wind. These are the features, and accordingly, we have to take a decision that whether to play or not. Fine. So, in this data set, it's quite simple. You can see the categorical values are there. Outlook, temperature, humidity, wind, all are having categorical values, and my target is also categorical. Yes and no. Okay, it's just a simple example. Okay, to show the working of a decision tree. Fine. Now, as I already told, that what you have to do, there will be a root node, and you have to submit this data set to the root node. Okay, and there will be a decision taken over this data set to split it into two parts, because in general the decision tree assumes that there will be a binary splitting. Okay, so we'll follow the same approach. I need to give this data and split it into two, but which feature it will take for the splitting, that is a question mark. Okay, so here we will learn how to apply a criteria. Okay, so let us take, this is how is root node selected, sir? Tree starts from root node only, sir. Okay, I'm not saying that without root node the trees start from the root node, and what feature will be available on the root node. Okay, that is what we are looking forward for. So the question is how root node is selected. So root node is present, what feature will be there on the root node for the splitting, that's what we are trying to find. So I don't know what is there at this node, that's what I'm looking, which feature. Okay, so the answer to the question is been given ahead. All right, by checking each and every feature. First, we have to build a tree, so that let me check each and every feature here. Okay, outlook, temperature, humidity, wind. Okay, let's get started with outlook. Okay, in outlook, I'm having sunny, overcast, and rainfall. Three types. Okay, sunny, overcast, and rainfall. Three types are present in the outlook. Okay, and the target is yes and no. Fine. So what I need to do is I have to create. Okay, just a second. Hello. Yes, Deepak. Yeah. Well, actually, I'm in a class right now. I will be having class till 9:30. Okay. Okay. Yes. I will. I will tell you. Okay. Yeah. 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 All right. So
According to the target, we are going to put the values here, yes and no. For sunny, I am having 2 yes, 3 no. You can verify with the data set. For overcast, having 4 yes and 0 no, and 3 and 2 with respect to the rainfall. Okay, you can check out with respect to the data. You can check out that for sunny how much it is there. Okay, fine, and all these things will be present. All right. So here after making this table, okay, these are the total number of instances which are present in each every row. Okay, these are the total number of instances. Fine. After that, you can apply Gini index. Okay, what is Gini index? Gini index is 1 minus probability square. Okay, so probability square means take the probability of both yes and no. Okay, so 1 minus 2 by 5 ka square. So 2 is for yes and 3 is for no. So 2 by 5, total is 5 now. So 1 minus 2 by 5 ka square minus 3 by 5 ka square. This will be for sunny. Okay, fine. So answer is 0.48. Check out for check out for overcast also and rainfall also. Okay, check out for these two also. Same thing. Apply the same approach. So I have calculated Gini index for all these three values. Now we will calculate the weighted sum of Gini. Okay, and the weighted sum of the Gini is 5 by 14 into 0.48. So how I got 5 by 14? See, 5 plus 4 plus 5, that will be 14. Okay, and consider for the sunny first. So 5 by 14 multiply by what we got, 0.48 for it. Okay, so 0.48. Okay, this will be your value for the sunny. Okay, this will be the your value for the sunny. Fine, so multiply 0.48 by 5 by 14, and next multiply 0 0, okay, by 4 by 14. By why 4 by 14? Because this is 4 and total is 14, so 4 by 14 multiply by 0. Okay, and then again 5 by 14 multiply by the Gini index of the third one, that is 0.48. So this is the weighted. Our answer is coming to be 0.342. Just keep a note of it. Okay, similarly, again make a table for another feature. Now let's consider the feature that is temperature. And in this table again, I will take hot, mild, and cool. These are the three values which are present in this temperature. So hot, mild, and cool. Okay, fine. So if I do make a table, based upon it, so here it is. Yes, no, hot, mild, and cool. Okay, how many times yes is coming, how many times no is coming? Same for all these. Okay, these are the total number of instances for each row. Later on I will sum up to make it 4 plus 4, that is 8 plus 6 is 14. Okay, that I will sum up ahead to calculate the weighted. So at this moment, just make this table. Now calculate the Gini index for hot. That will be 1 minus 2 upon 4 ka square minus 2 upon 4 ka square. Okay, so it is coming 0.5. Then calculate for cool, 1 minus 3 by 4 ka square minus 1 by 4 ka square. That's what I have to do. Then mild, 4 upon 6 ka square, 2 upon 6 ka square. Okay, that's what I will be doing. So overall, these are the Gini index for each and every one. Then calculated the weighted. In case of weighted, in case of weighted, you will multiply zero point 0.5 by multiply 0.5 by 4 by 14. Okay, why? This is 4, total is 14, so 0.5 multiply by 4 by 14. Similarly, your next one was how much? 0.375.
So 0.375 multiplied by 4 by 14 plus plus your 0.445 multiplied by 6 by 14. Okay, this is how you are going to multiply. And the Gini is coming to be like this. This is the Gini for the temperature 0.439. Okay, so for every feature, you have to calculate the Gini index. Right now, we are having a data set which is of your categorical type. Okay, categorical data has been there. Okay, so we'll follow the same approach related to it. Now, my next column will be your humidity, and after that, wind. So, I'll follow the same approach, humidity and wind also. So, temperature done, then let's take the humidity. How many yes and no are coming with respect to the values? Put it into the table, calculate the Gini index. Okay, calculate the Gini index and calculate the weighted. Okay, calculate the weighted. Similarly, go ahead with the wind. Okay, then make the table, calculate the Gini index. Okay, and perform your weighted. Okay, calculate the weighted. Fine. All these tasks you have to do. Fine. Okay. After performing all these tasks, after performing all these tasks, you have to make a comparative table. Okay, you have to make a comparative table. Okay, in this comparative table, you will check this, the feature names and their respective Gini index. That's what you have to make. Okay, so for Outlook, the Gini index is coming to be 0.342, then temperature 0.439, humidity 0.367, and wind is 0.428. This is how it is coming. Okay, so after that, after that, the one which is minimum Gini index. Okay, the question which came to me first, sir, how you are going to select the root node? That's what we have to do. How to select a root node? So here the one which is having the least Gini index, that is 0.342. So I will start making my tree from the Outlook. The one which is having the least Gini index, that is 0.342. So this is your root node. This is how we are going to select. So root node is present. Okay, that means I'm making this node. I'm going to give the data set to it. Okay, and here the selection of the feature or over which how the tree is going to be splitted, the criteria is followed the same which I have shown you above. So here the root node will be selected the over the feature, that is Outlook, and it will be divided into three parts. Okay, it will divided into three parts because Outlook is having three different values, three categories, three type. So the Gini index for the Outlook is the lowest, so we are going to select it as a root node. Okay, so here you give the data. Outlook will be selected, sunny, overcast, and rainfall. These are the three types which are present in Outlook. Okay, so my tree will be divided into three branches. Okay, so calculate the Gini index for each and every feature. The one which is minimum, select it as the node. Now, sunny, overcast, and rainfall. How I'm going to split the data according to all these sunny, overcast, and rainfall. Now let's check what we are going to do. So to calculate the Gini index, okay, over the Outlook features, we are going to make the subdata. Okay, so now let's take only sunny from the Outlook and take rest of the data according to it. This is rest of the data. I'm just taking Outlook as sunny. बस इसी को लेना है. आउटलुक सनी ले लो और बाकी जो उसका करस्पॉन्डिंग डेटा था उसको एज इट इज रखो. फाइन. और जो प्रोसेस है वो जिनी इंडेक्स निकालने वाली वो सेम यहां पर फॉलो अप करना है. अब आप देखिए यहां इम्प्यूरिटी क्या है. देखिए इम्प्यूरिटी ये है. आई एम हैविंग यस एंड नो. दिस इज द इम्प्यूरिटी.
ओके, जब तक आपके पास ये मिक्सचर होगा यस और नो वाला, वो इम्प्यूरिटी रहेगी। मेरा गोल क्या है? इम्प्यूरिटी को खत्म करना। मैं क्यों ब्रेक कर रहा हूं ये सब काम? व्हाई आई एम डूइंग दिस ब्रेक? कि स्प्लिट करो, क्योंकि इम्प्यूरिटी है डेटा में, इसलिए स्प्लिटिंग कर रहा हूं। जिस जिस समय मुझे या तो सारे नो मिल जाएंगे या सारे यस मिल जाएंगे, मैं अपना स्प्लिटिंग बंद कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू। तो अभी भी जब मैं इस टेबल को देख रहा हूं, मुझे इम्प्यूरिटी नजर आ रही कि यस और नो है। तो अब यस और नो है, तो किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, करना पड़ेगा। तो जिन इंडेक्स क्या था? वो प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहा था कि यदि अब मान के चलो आउटलुक सनी है और टेम्परेचर में मेरे पास हॉट, माइल्ड एंड कूल, ये तीनों हैं। ओके, तो वापस से टेबल बनाइए, वापस से बनाइए टेबल टेम्परेचर की। हॉट, कूल एंड माइल्ड, इसमें अगेन यस कितने हैं, नो कितने हैं, लिखिए फिर से। अगेन वो दिख रही है, इस टेबल से पता चल जाएगा कि हॉट में 1 2, दो नो है, 2 नो आर देयर। एंड यस तो कुछ है नहीं उसमें, तो यस 0। माइल्ड में 1 नो है, यस भी 1 है। और कूल में यस 1 है, नो कुछ नहीं है। ओके, सो अकॉर्डिंगली मेक द टेबल। ओके, फॉर यस नो ये बनाइए, है ना। फिर अगेन सेम थिंग, टोटल करिए, टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस टोटल करिए, जिनी इंप्यूरिटी निकालिए हर एक के लिए। ओके, कैलकुलेट द जिनी इंप्यूरिटी फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ऑल राइट, तो यहां पहले निकालिए जिनी इंप्यूरिटी। 0/2 का स्क्वायर, 1 - 0/2 का स्क्वायर, देन -2/2 का स्क्वायर, है ना। वही फॉर्मूला लगेगा, 1 - समीशन ऑफ PI स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लगा रहे थे। सेम करिए, कूल के लिए भी करिए, माइल्ड के लिए भी करिए, सेम करिए। और बाद में इनका वेटेड निकाल लीजिए, कैलकुलेट द वेटेड ऑफ दीज। ओके, एंड देन जस्ट कीप इट सेफ। दिस इज द वेटेड, जो अभी ऊपर बताया था वैसा के वैसे। कैलकुलेट द वेटेड एंड कीप इट। और देन उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी को सॉल्व करिए। ओके, ह्यूमिडिटी को सॉल्व करिए। ओके, अब यहाँ पर भी देख लीजिए हाउ मेनी यस एंड नो आर देयर। ओके, इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी, fine, in case of humidity I am having high and normal. Okay, these are the values which are present, high and normal. Okay, कितना yes है कितना no है, just write it down. Okay, that's what you have to do. Any doubt, please let me know. Yes sir, ask the question. सर, सो अगर इम्बैलेंस डेटा है तो भी ये काम करेगा फिर तो, क्योंकि आप वेटेड जीनी इंडेक्स ले रहे हैं हाँ सर, वेटेड तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना सर। तो इम्बैलेंस डेटा पे भी काम करेगा क्या? डेटा को बैलेंस नहीं नहीं करना सर, पड़ेगा? नहीं सर, रिक्वायरमेंट बैलेंसिंग की थी सर, मैंने अजम्पशंस में बोला है। ओके। ओके, हाँ, रिक्वायरमेंट बैलेंस की है सर। आप यदि देखें ऊपर अजम्पशन के अंदर, बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूमेरिकल, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने अजम्पशन बताया है। ओके, तो ये जो है सेंसिटिव टू सैंपल साइज है। ओके, ये उसको लेकर भी बात कर रहा है, आउटलायर के लिए भी है। ओके, आई शुड नॉट हैव एनी आउटलायर्स इन द डेटा, इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फीचर, मिसिंग वैल्यूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, व्हाट यू हैव टू टेक केयर दैट द डेटा शुड बी बैलेंस। कभी भी इनबैलेंस डेटा नहीं दूंगा, नहीं तो सर वो बायस हो जाएगा। ओके, इट विल आंसर टू द बायस रिजल्ट्स। ओके, ये सर सारे अजम्पशन से डिसेंट्री के जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फाइन, ऑलराइट, तो ऐसा करके जो है मुझे करना पड़ेगा। ओके, तो कभी भी बायस्ड डेटा नहीं देते हैं, हम उसको सर बैलेंस करेंगे। और आप जानते हैं स्मूथ एल्गोरिदम एंड डेटा बैलेंसिंग अदर एल्गोरिदम्स काफ़ी हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ह्यूमिडिटी के लिए भी सॉल्व करा। ठीक है, आई डिड दिस थिंग। एंड फिर उसके बाद आई विल बी सॉल्विंग फॉर द विंड ऑल्सो। विंड के लिए भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ये रहा मेरा विंड का सोल्यूशन। ओके, तो right now right now what I got, let me share my entire screen and explain about this stuff what we are doing. Okay, so here is the entire screen. Okay, here is the entire screen. So in data you are available with all the features you
solved it for the Gini index, and you found that in case of your outlook, you are getting the less Gini index. ओके, उसमें इम्प्यूरिटी कम था, तो आपने कम था तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके जो भी वैल्यूज था, ओके, यू स्प्लिटेड द ट्री, ये बना दिया आपने। अब जब आउटलुक में सनी है, व्हेन द आउटलुक इज सनी, योर आउटलुक इज सनी, नाउ यू आर सॉल्विंग द डेटा विद रिस्पेक्ट टू इट। व्हेन आउटलुक इज सनी, तो आपने सिर्फ वो वाला सबसेट ऑफ द डेटा लिया जहां पर सनी है। ओके, यहां पर आप वो वाला डेटा लोगे जो आउटलुक के अंदर कुछ और होगा और यहां पर कुछ और होगा, आउटलुक का वो वाला डेटा आप लोगे। सो सनी, ओवरकास्ट, वट एवर बी द थिंग इज, रेनफॉल जो भी आपका है वो आप इस तरीके से, ये होगा ओवरकास्ट और ये होगा रेनफॉल। ठीक है, तो इस तरीके से वो डेटा स्प्लिट हो रहा है, और आपने अभी फिलहाल सनी के लिए सॉल्व करा। ओके, योर डेटा वॉज लाइक दिस। ओके, ये था आपका डेटा जहां पर आउटलुक आपका सनी है। ठीक है, एंड रेस्ट आप इसको सॉल्व कर रहे हो। ओके, इन द सेम वे एज यू डिड द अबव। ओके, इसको सॉल्व करा, यहां पर भी आप देखिए जब तीनों वो सॉल्व हो गया, आई विल बी मेकिंग अ कंपेरेटिव टेबल। ये देखिए फिर से कंपेरेटिव टेबल बनाई गई कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में किसका जीनी इंडेक्स सबसे कम है। अब ये पता चला कि ह्यूमिडिटी का कम है। ओके, सो हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू आर गोइंग टू टेक द ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अब आप ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट कर लीजिए यहां पर, ये रहा। तो आउटलुक से सनी के रेस्पेक्ट में जब सॉल्व करा आपने, तो ह्यूमिडिटी वाज फाउंड टू बी हैव अ लेस जिनी इंडेक्स, और ह्यूमिडिटी में मेरे पास नॉर्मल एंड हाई दो स्प्लिटिंग है। फर्दर टू वैल्यूज आर देयर इन ह्यूमिडिटी, तो मैं उसको नॉर्मल और हाई अलग, फिर मैं इस तरीके से उसकी ब्रांचिंग कर दूंगा। दैट्स व्हाट आई विल बी गेटिंग, नॉर्मल एंड हाई। ओके, तो जिसका भी जिन इंडेक्स कम आ रहा है बस आप उसको नोड पे कंसीडर करना शुरू करिए। ओके, और उसके अंदर वॉट एवर बी द वैल्यूज प्रेजेंट, उसके करस्पॉन्डिंग आप उतनी यहां पर ब्रांचेस बनाना शुरू करिए। ओके, सो यहाँ ये चीज हुई, फाइन। देन देन अब क्या करना है मुझे, ये अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे, आई विल बी सॉल्विंग अहेड, जस्ट वेट। ये वाला भी ब्रांच हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके, जस्ट चेकआउट दिस ब्रांच ऑल्सो। सो आउटलुक में ओवरकास्ट जो है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं ओवरकास्ट के लिए। ठीक है, आउटलुक में जब ओवरकास्ट था तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या यहां पर नोड आएगा, दैट आई वांट टू चेक। ओके, तो जब मैंने ओवरकास्ट देखा, आउटलुक में जब ओवरकास्ट को देखा और जब मैंने डिसीजन देखे, तो सारे यस थे, ऑल आर यस। और क्योंकि जब वो सारे यस हैं, तो भाई अब मुझे इंप्यूरिटी तो मिली नहीं, देर इज नो, यदि यस और नो होता तो इंप्यूरिटी होती, बट देर इज नो इंप्यूरिटी बिकॉज ऑल द डिसीजन आर यस। तो भाई ये परफेक्ट है, और क्योंकि ये परफेक्ट है तो मैं फर्दर अब इसको स्प्लिट नहीं करूंगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर इसकी टेबल बना दो, ओके, इसकी टेबल बना दो और हॉट के रेस्पेक्ट में यस आ रहा है, कूल, अब तो सभी यस आ रहा है ना, सभी यस आ रहा है। तो यदि आपके पास आउटलुक ओवरकास्ट है, तो आपको तो गेम प्ले करना ही करना है, चाहे टेम्परेचर हॉट हो, चाहे ह्यूमिडिटी हाई हो, चाहे विंड वीक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू प्ले, दैट्स इट। तो आगे इन्होंने सीधा के सीधा यहां पर ओवरकास्ट लिख दिया, और उसका कोई फर्दर स्प्लिटिंग वाला मैटर ही नहीं है कि मुझे कौन सा यहां पर फीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नो इम्प्यूरिटी अवेलेबल। सो डन, यहां पर सॉल्व हो गया। सो सॉल्व मुझे वही करना है जहां पर इम्प्यूरिटी खत्म हो जाए, जहां पर सीधा टारगेट मुझे मिलेगा यस या नो, वहां तक सॉल्व करना है मुझे अपनी ट्री को। ओके, और फिर अब मेरे पास ये थर्ड ये बचा है, ये वाला बचा हुआ है, देखते हैं आगे क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो भाई ये यहां पर सीधा ओवरकास्ट पे आंसर आ रहा है यस। अब फर्दर स्प्लिटिंग का कोई मैटर ही नहीं है, डन, ये आपकी ट्री इतनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नाउ अब जो है मेरे पास, जब आउटलुक सनी सनी था, आउटलुक सनी था, ये देखिए, ठीक है, आउटलुक सनी था। ओके, ये रहा सनी था आउटलुक, और ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है। ठीक है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है या हाई, दोनों में से कोई एक लेना, ले लीजिए। ह्यूमिडिटी हाई है मान लो, क्योंकि नॉर्मल भी लेना है और हाई भी लेना है, कोई इशू नहीं। सो आउटलुक सनी है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो उसका वाला जो बचा हुआ डेटा वो कंसिडर करो, तो ये बचा है एंड ये बचा है, बस इतना पोर्शन बचा हुआ, दीज आर लेफ्ट। व्हेन
आउटलुक इज सनी एंड द ह्यूमिडिटी इज हाई। तो आप ये वाला पोर्शन आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके, दिस इज द पोर्शन, आउटलुक इज सनी एंड ह्यूमिडिटी इज हाई, जस्ट सॉल्व दिस पोर्शन। ओके, इतना सॉल्व कर रहे हैं, फाइन। ओके, तो इसकी ये रही टेबल, यहां पर टेम्परेचर, विंड और डिसीजन। अब बात ये सामने आई है कि यहां डिसीजन नो आ रहा है, अगेन कोई इंप्योरिटी नहीं बची। तो भाई क्लियर हो गया कि जब आपका आपका सनी है, ह्यूमिडिटी हाई है, ओके, तो डिसीजन क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द डिसीजन, ये नो हो जाएगा। और इसको भी देख लो अब आप, जब सनी है देन नॉर्मल है, तो टेबल क्या बन रही है, जरा इसको भी देख लेते हैं। जब सनी है, ये देखिए सनी है, ओके, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, इतना डेटा बचा आपके पास, टेम्परेचर, विंड एंड विंड, ये डेटा बचा, डिसीजन यस आ रहा है, दैट मीन्स यहां भी कोई इंप्यूरिटी बची नहीं है, यू आर गेटिंग द डिसीजन एस यस। तो भाई बस यहां पर ये यस आ जाएगा, दैट्स इट, ये बन गया ट्रिक। यहां तो यस ऑलरेडी आ चुका था, बस ये वाला पोर्शन बचा हुआ है मेरा, तो इसके लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो भाई अब मेरा रेनफॉल वाला बचा हुआ, व्हेन आउटलुक इज रेनफॉल, जब आउटलुक रेनफॉल है, ओके, व्हेन आउटलुक इज रेनफॉल, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, इनके रिस्पेक्टिवली क्या वैल्यूज हैं जरा देख लो। व्हेन आउटलुक इज रेनफॉल, तो ये रहा आपका रेस्ट ऑफ द फीचर्स, जिसमें यस नो यानी अभी भी इंप्यूरिटी है। क्योंकि इंप्यूरिटी है तो मुझे अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे अब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फीचर में अपीयर, वहां पर कौन सा फीचर आ सकता है। तो फिर एक हर एक का जीनी निकालिए। अब आप पहले टेम्परेचर का निकालो, जीनी कितना आ रहा है, उसमें यस कितने आ रहे हैं, नो कितने आ रहे हैं। तो भाई टेम्परेचर में कूल एंड माइंड दो वैल्यू है, वन टाइम यस आ रहा है, वन टाइम नो आ रहा है कूल में। माइंड में टू टाइम यस आ रहा है, वन टाइम नो आ रहा है। तो टोटल इंस्टेंसेस जो हो गए 5 है, 2 एंड 3 ईच है यहाँ पर। तो इसका जिनी निकालो आप, कैलकुलेट द जिनी ऑफ इट, और वेटेड निकालो। फिर आप वेटेड तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई क्या है, आप याद करिए इंफॉर्मेशन गेन का भी, व्हेन आई वाज टीचिंग यू, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो मैंने जो पेरेंट की एंट्रोपी थी उसमें से चाइल्ड की एंट्रोपी वेटेड वाली माइनस करी थी मैंने, तो ही उतनी ही इंफॉर्मेशन गेन मुझे मिली थी, तो वेटेड तो आएगा ही आएगा। ओके, वेटेड अपने आप में एक रेशो बता रहा है, एक परसेंटेज बता रहा है कि किस फ्रैक्शन से कितना जो है आई एम अचीविंग, सो तभी वेटेड लेकर चल रहे हैं। ऑलराइट, तो भाई यहां पर आपने वेटेड लगाया, ये जो आया है, दिस केम फॉर योर टेम्परेचर। ठीक है, ये उसका वेटेड आ गया टेम्परेचर का। उसी तरीके से अब आप आगे बढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी का भी निकालेंगे। ओके, तो ह्यूमिडिटी का ये रहा, ओके, कितना यस नो वैल्यूज आ रहा है, नॉर्मल का कितना वैल्यूज आ रहा है यस नो का, आप इसका भी जीनी निकालिए, इसका भी वेटेड यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, करिए डन। सो आपका ये रिजल्ट जो है 0.466 आ गया है। एंड विंड बचा हुआ है, तो विंड का भी निकाल दीजिए आप। ओके, तो एट द एंड विंड का भी जीनी निकाला है एंड वेटेड निकाला है, इनका कंपेरेटिव टेबल बना दीजिए आप। ओके, सो हियर इट इज, दिस इज द कंपेरेटिव टेबल। तो टेम्परेचर का 0.466, ह्यूमिडिटी का 0.466, विंड का 0। तो सीधी सी बात है कि मुझे विंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहां पर रखने के लिए। ओके, आई विल बी कीपिंग विंड हियर, यहां पर विंड आएगा। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, जीनी इंडेक्स निकालिए और पता चल जाएगा कि कौन सा फीचर आने वाला। तो विंड है, विंड में कितने टाइप हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर प्रेजेंट इन द विंड। विंड में वीक है, स्ट्रांग है। ओके, तो उस तरीके से स्प्लिटिंग कर दीजिए फर्दर, तो सिलेक्ट द विंड। ओके, तो वीक है, स्ट्रांग है, तो ये देखो ये ब्रांच बन गया, वीक का बन गया, स्ट्रांग का बन गया, यहां पर अभी पता नहीं। तो अब एक आपको क्या काम करना पड़ेगा, टेक रेनफॉल एंड टेक वीक विंड, इन दोनों को फिक्स रखिए, और और रेस्ट को उसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग आउटलुक एज रेनफॉल, विंड एज स्ट्रांग, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का क्या बिहेवियर है देख लेते हैं। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ये आ रहा है नो, नो, तो सीधी सी बात है कोई इंप्यूरिटी बची नहीं है, नो आंसर आ रहा है, तो भाई यहां पुट अप कर दो नो। यदि स्ट्रांग है, ठीक है, रेनफॉल है, विंड स्ट्रांग है तो नो, और वीक है तो क्या करना है, लेट्स सी। ठीक है, यदि विंड वीक है और रेन आउटलुक रेनफॉल है, तो आपने देख लिया इन दोनों का मुझे चेकआउट करना था, आई गॉट ऑल यस, देन अगेन
कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो आंसर इज यस। यहाँ पर यस कर दीजिए। ओके, यहाँ पर यस कर दीजिए। दैट्स इट, आपका डिसेंट्री पूरा बन गया। दैट्स इट, यही बनाना था डिसेंट्री में। ऐसी ही बनती है डिसेंट्री। ठीक है, तो फाइनल आपको ये डिसेंट्री बन गया। सो स्टार्टेड माई वर्क ऑन द डिसीजन ट्री। जब मैंने करा था तो ये बना बनाया दिखाया था मैंने आपको। एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड कि हाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस ट्री, आई विल टीच यू अहेड। ओके, तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। इट्स वेरी इजी टास्क व्हेन यू आर डीलिंग विद कैटेगरिकल डेटा। ओके, एंड यू आर हैविंग द टारगेट इज कैटेगरिकल ओनली, यस एंड नो, जो आपके पास है। ऑल राइट, तो भाई आपने क्या करा, समझ लीजिए एक बार और। दिस इज योर डेटा सेट, okay, where you are having a binary decision yes and no, and outlook, temperature, humidity, wind, all are the features. Okay, you have to take one feature one by one. Okay, you have to take these features and make a table corresponding to the target. आपने सबसे पहले आउटलुक लिया। आउटलुक में आपके पास सनी था, ओवरकास्ट था, रेनफॉल था, 3 वैल्यूज था आपके पास। अब ये देखो कि सनी में वो यस कितनी बार आ रहा है और नो कितनी बार आ रहा है। तो ये रहा सनी, नो आ रहा है। ओके, सनी नो आ रहा है, तो 2 टाइम्स नो आ गया सनी में। और चेक करो कि सनी और कहीं नो आ रहा है क्या। ये रहा सनी, नो आ रहा है, 3 टाइम्स नो आ गया। तो चेक करो कि सनी में यस और नो कितनी बार आ रहा है, को टेबल के अंदर एंट्री करिए आप। ठीक है, ओवरकास्ट के लिए भी चेक करिए कितनी बार आ रहा है, रेनफॉल के लिए भी चेक करिए कितनी बार यस एंड नो आ रहा है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, फिर उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का भी टारगेट के साथ चेक करिए कितनी बार यस और नो आ रहा है, उसका जो भी वैल्यूज है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ये करते रहना पड़ेगा आपको। ओके, ह्यूमिडिटी और विंड के भी साथ भी यही चेक करना है आपको कि कितनी बार आ रहा है। ओके, मार्क दीज थिंग्स। ठीक, तो ये देखिए मैंने टेबल वही बनाई है कि सनी कितनी बार यस उसमें आ रहा है, कितनी बार नो आ रहा है, और ये टोटल है। यानी 2 + 3 5, 4 + 0 3 + 2 5, इस तरीके से। ऑलराइट, ये करना है आपको। एंड देन क्या करना है आपको नेक्स्ट। देन क्या करना है आपको नेक्स्ट, इनका जीनी निकालो। जीनी 1 - p²। ओके, तो भाई सीधा सा मैटर था। 2/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, 1 - फॉर्मूला क्या था जीनी का, 1 - समीशन ऑफ पी आई का स्क्वायर। आप एंट्रोपी भी ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं है। यू कैन टेक पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स समीशन, ये भी ले सकते थे आप भाई, मैंने मना नहीं करा, ये जिनी इजी कर दिया। यू कैन टेक दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ये अप्लाई कर दीजिएगा आप, एंट्रोपी से निकाल दो। एक चीज बोली गई है आपको, while considering the different criteria, there could be change in the development of the tree, हो सकता है बदल सकता है ट्री। ओके, क्राइटेरिया के अनुसार। ओके, तो हो सकता है जिनी को कंसिडर करते हुए आपका ट्री कुछ और बन रहा है, और एंट्रोपी के टाइम पर आपका ट्री कुछ और बन जाए। फॉर्मूले अलग अलग हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज। ओके, फॉर देम तो करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज चेंजेस आ सकता है। ओके, तो ट्री का डेवलपमेंट डिफर हो सकता है। अभी फिलहाल हमने जिनी को कंसिडर करा है ना, इजी मानते हुए। यहाँ पर कोई को मुझे लॉग वॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप ये कर लीजिए, सनी का निकाल दिया, ओवरकास्ट का निकाल दिया, रेनफॉल का निकाल दिया, इनका वेटेड निकाल दिया। आई कैलकुलेटेड द वेटेड ऑफ दम। तो वेटेड के लिए क्या करोगे, यहाँ आया 5/14। 5/14 कैसे आया था मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये पूरा टोटल है 14। सो 5/14 मल्टीप्लाई बाय द जिनी ऑफ सनी। Similarly, 4/14 multiplied by Gini of overcast, 5/14 multiplied by the Gini of rainfall। सबका समीशन करना है, वेटेड आ जाएगा, ये रहा वेटेड। और उसको नोट कर लो। इसी तरीके से टेम्परेचर का करिए, देन ह्यूमिडिटी का करिए, देन विंड का करिए, सबका करिए, और उनको फिर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि आउटलुक का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, विंड का क्या जीनी इंडेक्स आ रहा था, जिसका भी कम आया है बस उसको अपना नोड मान लीजिए। ये फॉलो करना है आगे के लिए। ये मेरा नोड है। ओके, ये मेरा नोड आ गया। एंड देन आफ्टर दैट ये देखिए, तो आउटलुक मेरा नोड आ गया। देन सनी, ओवरकास्ट एंड रेनफॉल, इन तीनों की ब्रांचेस बना दिया। अब यहां कौन सा नोड आएगा इसके लिए मुझे चेकआउट करना है, व्हाट आई नीड टू डू। सो आउटलुक में सनी वाला डेटा अलग कर लो, सेपरेटेड। सनी वाला डेटा अलग कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए मैंने
जो है अपने डेटा को स्प्लिट कर लिया, सनी वाला डेटा अलग अलग छाट लिया, पूरा ये पूरा सनी है, ठीक है। एंड रेस्ट जो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा है वो यहां पर लिखा गया है। अब रेस्ट के लिए भी वही अप्रोच फॉलो करना है जो ऊपर करा था। अगेन कितने टाइम यस आ रहा है, कितने टाइम नो आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। ओके, टेबल बनाइए, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए, तीनों के लिए टेबल बनाओ। जिसमें कम जी नहीं आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लो। और ये क्यों करना है, क्योंकि अभी भी मुझे यहां पर इंप्यूरिटी नजर आ रही है, यू कैन सी नो एंड यस वाला फंडा है, तो इंप्यूरिटी इज देयर, तो करना तो पड़ेगा। यदि इंप्यूरिटी नजर नहीं आती तो मैं यहीं पर ही खेल कर देता, मैं बोल देता यस आंसर आई गॉट, रिजल्ट आ रहा है यस या नो, क्योंकि एट द एंड, क्योंकि आपका लास्ट वाला जो नोड है वो लीफ नोड होगा, वहां पर रिजल्ट शो होते हैं। ओके, 0 1 ट्रू फॉल्स यस एंड नो, वहां पर रिजल्ट शो होते हैं। तो यू हैव टू एक्सप्लोर द ट्री अनलेस एंड अनटिल यू डिडंट गेट व्हाट, क्या नहीं मिल रहा आपको, जब तक आपको रिजल्ट। एक चीज है बड़ी, वो ये है कि आप अपने डेटा को जब भी दें ट्री के अंदर स्प्लिट होने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा उसको शफल कर दें, डेटा शफल कर दें। मतलब हम ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने आपने डेटा दिया, फॉर एग्जांपल यू गेव द डेटा, उसमें शुरुआत वाले सारे यस हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे यस हैं, और बाद वाले सारे नो हैं, तो ये मैं नहीं चाहता। वो कुछ चीजें अपने आप शायद कोई पढ़ाए या ना बताए, तो हमें समझ आना चाहिए कि डेटा शफल करके दो आप, ताकि यस और नो की मिक्सिंग हो जाए वहां पे, तो उसके हिसाब से प्रॉपर मेरी स्प्लिटिंग हो, ठीक है। क्योंकि यदि मैं यहाँ पर देखूंगा, अब मैं यहाँ पर फीचर्स को देखूंगा, अगेन कंसिडर करूंगा, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग कितना यस और कितना नो आ रहा है। हालांकि फर्क जो है जो भी पड़ेगा इंटरनल वर्किंग पे पड़ेगा, लेकिन मैं शफल करके दूं, ठीक है, तो बेटर रहेगा। फाइन, तो शफल इक्वल टू ट्रू कर दीजिएगा जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो तो आप, फाइन, तो डेटा शफल हो जाएगा। और ऑब्वियसली होना करना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को जो डेटा मिलेगा ट्रेनिंग का, वो एक यूनिफॉर्मिटी वाला ना मिले। मैं चाहता हूं उसको परेशान होने दो, ठीक है, उसको परेशान होने दिया जाए। फाइन, तो ये चीज है। ओके, ठीक, ये करिएगा। देन द थिंग इज नेक्स्ट, बस हो गया। हर एक के लिए सॉल्व करते रहिएगा आप, और जो है आपका ट्री बन जाएगा। ये अप्रोच पूरी की पूरी फॉलो करिए। दिस इज हाउ द डिसीजन ट्री वर्क्स, सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द वर्किंग। जिनी के साथ कर दिया, एंट्रोपी के साथ आप कर सकते थे, जो आपको लगे वो आप क्राइटेरिया मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट। ये मेरा ट्री सॉल्व हो गया। ओके, फाइन, आई गेस अब इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। दिस इज हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। ओके, तो मैं एक रिकैप लेना चाहूंगा इन सब चीज़ों का, कि भाई डिसीजन ट्री हमने पढ़ा कि एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों कर सकता है। रिग्रेशन अभी अपन आगे पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी रिग्रेशन है, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन था। आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जो डेटा सेट है, डेटा सेट, वो तो सर यहाँ आपने बहुत सिंपल लिया है, ऑल आर कैटेगरिकल इन नेचर। यदि मान लीजिए मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती कंटिन्यूस, और टारगेट यस एंड नो होता, तो क्या कर लेते आप। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग यस एंड नो ओनली एज अ टारगेट, और यहां पर यदि मेरे पास कंटिन्यूस होता, ओके कंटिन्यूस होता, तो आप क्या कर लेते, जैसे 1.5, 2.7, 3.9, 0.5, सो वॉट यू आर गोइंग टू डू। क्या इसकी स्प्लिटिंग भी जैसे अभी आपने सिखाई है वैसे ही करोगे, वॉट यू आर गोइंग टू डू। तो देखिए क्या होता है यहां पर, मैं आगे सिखाऊंगा अभी। अभी तो आपने जब देखा कि कैटेगरिकल वैल्यूज था, टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी, ट्रू फॉल्स, यस नो, स्ट्रॉन्ग वीक, इतना बोल रहा था, बड़ा आसान हो गया। लेकिन यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करोगे। तो भाई यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, सेम जो आपने इस पे करी है कैटेगरिकल पे। यानी आपको ये पहले कहता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, arrange them into ascending order, यानी 0.5, then 1.5, then 2.7, then 3.5, then 4.5, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में पूरा जमेगा। वो जो भी कंटिन्यूस फीचर असेंडिंग ऑर्डर में जमेगा, और उसका जो टारगेट है वो उसके सामने इसी तरीके से आएगा, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, असेंडिंग में करने के बाद अब वो डेटा को जो है स्प्लिटिंग, यहां पर भी फर्दर स्प्लिट अब वो कंसिडर करेगा कि भाई मैं क्या करूं, एवरेज करूं इन दोनों वैल्यू का,
जब वो रिग्रेशन होता है तो ये काम करता है, एवरेज करता है वैल्यूज को, ठीक है, एवरेज करता है। अब भाई ये कंटिन्यूस के ये कंटिन्यूस वैल्यूज आ गया पूरा की पूरा, और यहाँ पर यस है नो है, यस है नो है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो लिखा गया है, यस एंड नो, फाइन। जैसा आपने फॉलो अप करा था प्रीवियसली बाय टेकिंग द कैटेगरिकल, सेम यहाँ पर फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। ओके कि यार ये वैल्यू है, इसमें यस कितनी बार आ रहा है, नो कितनी बार आ रहा है, ये वाली वैल्यू है, इसमें यस कितनी बार आ रहा है, नो कितनी बार आ रहा है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, सेम अप्रोच। डिसेंट्री अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेगा, वो ऐसे ही चलेगा। फॉर न्यूमेरिकल ऑल्सो इट विल डू द सेम थिंग। ओके फाइन। और ये मैं डिसेंट्री का रिग्रेशन वाला टास्क भी बताऊंगा कि कैसे क्या करेंगे, वहां और ज्यादा क्लियर करूंगा मैं आपको, ठीक। तो अभी तो भाई ये है कि न्यूमेरिकल्स भी हो, सेम आपको टेक्निक फॉलो करनी है। कहीं किसी बुक में या कहीं किसी जगह पर इसका ऐसे सोल्यूशन इट्स नॉट बीन मेंशन, नॉट गिवन, दिया नहीं है कि आपको हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो डिसेंट्री कैसे सॉल्व करेंगे। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको बता चुका हूं, हो सकता है आपको कई जगह मिल जाए ये सोल्यूशन वाला, बट यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो और क्लासिफिकेशन करना हो और फीचर बाय फीचर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्लिट द डेटा, तो भाई फॉलो तो यही अप्रोच होगी जो सिखाई गई है, सेम यही अप्रोच होगी जो सिखाई गई है, अलग कोई और अप्रोच नहीं है। क्राइटेरिया वही लगाएगा स्प्लिट करने का, ओके कि इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू की कितनी बार यस आ रहा है, कितनी बार नो आ रहा है। ओके दैट्स व्हाट इट विल डू। ऑल राइट, और जिसका भी जिनी कम आएगा वेटेड, ठीक है, उसको वो उठा लेगा, उसको वो अपने रख लेगा, ठीक है, एंड उसको फिर फर्दर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरा ये था कि ये सुपरवाइज लर्निंग है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के लिए, दोनों के लिए। अभी क्लासिफिकेशन के लिए देखा, उसका हमने थोड़ा सा मैथ समझा कि क्या होता है, ठीक है। डिसेंट्री में बता चुका था ये सारी बातें, ओके। डिसेंट्री का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया था कि जो ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन है वो स्प्लिटिंग का, वो पैरेलल जो है हाइपर प्लेन बनाता है, उनको स्प्लिट करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर स्प्लिटिंग हो रही है, T1 था, T2 था, T3 था, पर परपेंडिकुलर स्प्लिटिंग होती चले जा रहा है डेटा। ये टास्क मैं बता चुका हूँ, ये फॉलो अप होता है पूरा यहाँ पर, ठीक है। ये भी बता चुका हूँ। ये वाला जो न्यूमेरिकल अभी हमने सॉल्व करा है डिसेंट्री पर बेस्ड, दिस इज द न्यूमेरिकल आई सॉल्व, यस सर आज द क्वेश्चन। सर तो अगर हम लोगों ने प्रूव किया, सपोज हम लोगों ने जो नंबर ऑफ नोट्स जैसे मैक्स स्टेप एक ये हाँ होता हाँ है, हाँ हाँ होता है। आर्ग्यूमेंट होता है, हम्म। तो उसके बाद हम वोटिंग करते हैं या फिर एवरेज लेते हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ डिसेंट्री के वोटिंग, केस में। जैसे यहाँ पर वोटिंग होगा। हाँ, यस, ओके। कितना यस है तो कितना नो है सर, वोटिंग वाला मैटर है। हाँ, तो उसके जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा वो हम लोग येस और नो में डाल देंगे। हम्म। वो अगर मैं थोड़ा आगे का सोचूं, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट में बहुत सारे डिसीजन ट्री होते हैं, हाँ बहुत अगर सारा होता है उनका अलग अलग आउटपुट आ जाए तो क्या करते हैं? सर उनका। देखिए सर, ये चीज़ अपन रैंडम फॉरेस्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारा डिसीजन ट्री होता है, ओके। और वहाँ पर भी आप सेम अप्रोच को ही फॉलो करेंगे कि कितना डिसीजन ट्री आपको यस दे रहा है, कितना डिसीजन ट्री आपको नो दे रहा है, क्योंकि रिग्रेशन ऐसा है जहाँ पर हम एवरेज करते हैं, रिग्रेशन में एवरेज करते हैं और यहाँ पर वोटिंग करवाते हैं, ठीक है। हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द वोट, वोटिंग करेंगे। तो भले ही आपका एक डिसीजन ट्री, in case of random forest, one decision tree is giving yes, another decision tree is giving no, another decision tree is also giving no, so no का हमारे पास ज्यादा आ रहा है तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एज अ नो, ये हम चाहेंगे अपने रिजल्ट के अंदर, ओके दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यही होता है, तो वोटिंग होता है रैंडम फॉरेस्ट के अंदर भी, क्लासिफिकेशन है वोटिंग ही होगा, ओके। जिसको मैक्स वोट मिल रहे हैं दैट विल बी सिलेक्टेड एज एन आंसर, ओके। तो खैर हमको इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखना है, वहाँ मैं और हाईलाइट करूंगा कि विच फंक्शन यू आर गोइंग टू अप्लाई। रैंडम फॉरेस्ट तो अलग अलग एल्गोरिथम है, वो तो आगे पढ़ेंगे। और उसमें भी क्या होने वाला है, रैंडम फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्री, जैसा कि अभी बोला गया है। तो अभी आप एक वर्किंग ट्री, एक डिसीजन ट्री, ओनली वन डिसीजन ट्री का वर्किंग आप अभी समझा रहे हो, सिखा रहे हो।
सिमिलरली वहां पर कई बार डिसीजन ट्रीज होगा, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स आपको लेना पड़ेगा, 10, 20, 100, 200, जितने भी लेते हो लोगे। हर एक डिसीजन ट्री अपना एक रिजल्ट देगा, वॉट एवर बी द रिजल्ट। ठीक है, जो मुझे डिसीजन ट्री से मिल रहा है उसमें देखूंगा सबसे ज्यादा किसका अकाउंट है, द वन विच इज हैविंग द हाइएस्ट काउंट्स, यस का है या नो का है, तो मैं उसको फाइनल कर लूंगा, ये मेरा आंसर होगा। यहाँ पर सिर्फ ओनली वन डिसीजन ट्री सॉल्व हो रही है पूरी, एंड यू आर गेटिंग यस एंड नो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी अपन काउंटिंग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अपन काउंटिंग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको एक अरे के अंदर हम सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वाला एक पोर्शन सॉल्व हुआ, उसका आंसर यस आया, एक नो आया, फिर यस आया, यस आया, यस आया, तो मान के चलिए अपने एक अरे बनाया है, इसमें यस नो करके ऐसे आंसर आ रहे हैं। वी विल अगेन चेक कि भाई कितने कितने यस आ रहे हैं, कितने नो आ रहे हैं, जितने ज्यादा यस आ रहे हैं वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से मैं बोल दूंगा। ओके, तो डिसेंट्री ये जो है प्रोसेस फॉलो कर रहा है, बाकी मल्टीपल डिसेंट्री के अंदर भी वोटिंग होगा फाइनल, तो इन सब से ये रिजल्ट निकाल लेंगे, फिर फाइनल वोटिंग करवा देंगे। रैंडम फॉरेस्ट चाहे हो गया, चाहे एक्जी बूस्ट हो गया। ठीक है, बूस्टिंग जो टेक्निक है वहां पर अलग फिनोमेना होता है, वो सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है, रैंडम फॉरेस्ट पैरेलल अरेंजमेंट होता है। ओके, तो दोनों टेक्निक, रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग को फॉलो करता है, एक्जी बूस्ट बूस्टिंग को फॉलो करता है, तो उसका मैं प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा जब उन एल्गोरिथम्स उसको पढ़ाऊंगा। ओके, तो उनको बैगिंग एंड बूस्टिंग टेक्निक में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिकल था जो मुझे सॉल्व करना था, रिजल्ट्स बना दिया। एंट्रोपी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस की बात कर रहे हैं, यानी इम्प्यूरिटी की बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी की ही बात कर रहे हैं। पीएक्स लॉग ऑफ पीएक्स आपको लगाना है, मैं लगा चुका हूँ, ये क्राइटेरिया है। तो जितनी रैंडमनेस होगी भाई उतना आपको, अब एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है, अब आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, द फीचर विच इज हैविंग लो लो इम्प्यूरिटी, यानी जिसका जीनी इंडेक्स कम आया है, यदि आप जीनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो, तो वो वाला फीचर जिसमें लेस इंप्यूरिटी है उसको आपने सिलेक्ट करा था, क्योंकि आउटलुक ही ऐसा है जिसकी इंप्यूरिटी कम आई थी, जिनी उसकी वैल्यू कम आया था, यू सिलेक्टेड। सो विद रिस्पेक्ट टू द जिनी हुज इंप्यूरिटी इज लेस, आई एम सिलेक्टिंग दैट फीचर। क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि कौन सा फीचर लोगे, जिसमें हाईएस्ट इंप्यूरिटी उसको सिलेक्ट करोगे या जिसमें कम है उसको सिलेक्ट करोगे। आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया विच यू आर फॉलोइंग, if you are taking the Gini as an impurity as an criteria, so which is less, I am going to select that। इंफॉर्मेशन गेन में ये बोलते हैं जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जहां पर एंट्रोपी ज्यादा, जहां पर रैंडमनेस ज्यादा, वहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलती है मुझे, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन सा वाला आप सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, फीचर स्प्लिट करने के लिए। ओके, तो अभी वो मैंने जिनी लगाया था, आप चाहते तो एंट्रोपी भी लगाते, तो ये भैया अपना एंट्रोपी वाला फॉर्मूला, वही पी एक्स लॉग और पी एक्स लगाते अभी सब में, और पता करते क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ये निकाला, के एल डाइवर्जेंस बताया, और इसको काफ़ी समझने की कोशिश करिए कि इफ़ यू आर हैविंग टू डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, एक मेरा रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक मेरा प्रेडिक्टेड है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या आ रहा था, तो के एल डाइवर्जेंस में हमने पता करा था डाइवर्ज कितना हो रहा है, वो मेरे जो एक्सपेक्टेड है, जो बताया गया है कि इस रेंज में वैल्यू आनी चाहिए, तो आपका प्रेडिक्शन कैसे डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ा हमने, हर एक फीचर का इंडिविजुअल निकलता है, ये भी बताया था मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, केएल डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से सेपरेट मेरे पास नोट्स था, उसको मैंने कवर करा था। इंफॉर्मेशन गेन की बात करी थी, तो अगेन आपके पास जो है रूट नोड है, पेरेंट है, और वो चाइल्ड में स्प्लिट हो रहा है, तो इसकी इंट्रोपी, इसकी इंट्रोपी, इसकी इंट्रोपी, तीनों की इंट्रोपी निकालो, इसकी वेटेड, इनकी वेटेड करना, एंट्रोपी निकालने के लिए बाद वेटेड करना है। तो जो इसकी एंट्रोपी है उसमें से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वेटेड एंट्रोपी ऑफ दिस एंड वेटेड एंट्रोपी ऑफ दिस, ये करना पड़ेगा आपको, तो आपको इंफॉर्मेशन गेन आएगा। ओके, सो ये बता रहा है इंफॉर्मेशन गेन यानी रिडक्शन इन एंट्रोपी, यानी वो टूटने के बाद उसकी एंट्रोपी कितनी कम हुई है, कितनी रैंडमनेस उसकी कम हुई है। ठीक है, तो ऐसा फीचर मुझे सिलेक्ट करना है जो कि उसकी रैंडमनेस को कम कर दे, उसकी इंप्यूरिटी को कम कर दे, ये मुझे सिलेक्ट करना है। Okay, information gain suggests a lower entropy group or the group of samples which are lower entropy। Obviously, मैं उन्हीं में ब्रेक करूंगा जिनकी एंट्रोपी अपने पेरेंट से कम होगी। ओके, उन्हीं के ग्रुप मुझे बनाना है। ठीक, तो ये भी मैंने बता दिया था पूरा, और ये सारा नोट्स के अंदर अवेलेबल है। और फिर जीनी की बात करी थी, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और अभी मैंने जीनी ही अप्लाई करा है, वन माइनस समीशन ऑफ पी आई स्क्वायर, दैट्स व्हाट आई अप्लाइड। यहाँ पर ये टास्क करा है परफॉर्म। ओके,
एंड ये पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, फाइन। ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग को ये देता है, डिसीजन ट्री इसका ध्यान रखना है। तो जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल फीचर को स्प्लिट करना है तो उसको पहले सॉर्ट करिए आप असेंडिंग ऑर्डर में। अभी कुछ देर पहले ये बोल चुका हूं, ठीक है, कुछ देर पहले मैंने यही बोला। और हर एक ट्राइंग फॉर ईच वैल्यू एज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, और हर एक वैल्यू को थ्रेशोल्ड पॉइंट लेना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड पॉइंट कैसे लेना पड़ेगा, हाउ इट इज सेइंग थ्रेशोल्ड पॉइंट, क्योंकि वो यहां पर एक स्मार्टनेस दिखाएगा। वो क्या स्मार्टनेस दिखाएगा, जरा मैं बता रहा हूं क्या दिखाएगा। वो ये कह रहा है कि यू हैव टू स्प्लिट, you have to split a tree on the basis of a threshold point। तो बताऊँ क्या होता है न्यूमेरिकल के केस में, लेट मी टेल यू। थोड़ा सा और मैं बात कहूँ इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूमेरिकल फीचर है, ओके, यू आर हैविंग अ न्यूमेरिकल फीचर, ये न्यूमेरिकल फीचर है और ये मेरा जो है टारगेट है, टारगेट ये न्यूमेरिकल है। तो क्या होगा, पहले न्यूमेरिकल जो भी वैल्यूज है ना उसको असेंडिंग में जमा कन्वर्ट करिए, असेंडिंग ऑर्डर में लाइए। तो जैसे करा आपने 0.5, 1.5, 3.5, 4.5 ये करा आपने, देखिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिलेक्ट अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक थ्रेशोल्ड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग आप स्प्लिट करोगे, और थ्रेशोल्ड जो वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों का मीन निकाला, फॉर एग्जांपल मीन करा इनका, और बोला कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो उससे नीचे वाला ये ऊपर मतलब लेफ्ट पार्ट हो जाएगा और उसके नीचे वाला राइट पार्ट हो जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मीन निकालना, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा। तो इसको आगे और समझाया जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला ही कॉलम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कैटेगरिकल तो हम समझ गए, उसमें कोई ज्यादा एफर्ट लगाया ही नहीं गया। यहां पर आपको और आगे बताया जाएगा। तो असेंडिंग में जब आएंगे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रखिए, उसके बाद स्प्लिट करिए, और करते रहना है मुझे, करते रहना है। फिर मान के चलिए इन दोनों का एवरेज लिया, तो अब जो भी एवरेज आया है उससे नीचे वाला मेरा एक पार्ट बन गया, उससे ऊपर वाला मेरा दूसरा पार्ट बन गया। फिर यहां पर जीनी निकालो, तो हर एक थ्रेशोल्ड के अबाउट अप एंड ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट करके सबका जीनी निकालना है, ये काम करना है आपको। और फिर बाद में चेक करना पड़ेगा किसका मिनिमम था, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैं अपने ट्री को ब्रेक कर सकता हूं। दैट्स व्हाट आई कैन डू, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर ब्रेक होगा। तो सेंडिंग में जमाइए, थ्रेशोल्ड देखिए, एंड देन परफॉर्म द टास्क। वो यहां पर बहुत सिंपल वे में कह गया, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स है इसके पीछे। For splitting of the numerical features, you have to sort the data in ascending order and try each value as the threshold, and and calculate the information gain for each value as a threshold। यानी या तो आप मीन नहीं भी कर रहे हो दो वैल्यू का, वो कह रहा है हर एक वैल्यू को थ्रेशोल्ड लो। बोलो कि भाई आई एम डिवाइडिंग माई डेटा ओवर 0.5, इससे ऊपर और इससे नीचे मैं 0.5 से डिवाइड करूंगा अपना, मतलब अपने डिवाइड डेटा को डिवाइड करूंगा 0.5 के अबाउट, ठीक है। फिर 1.5 के अबाउट, फिर 3.5 के अबाउट, फिर 4.5 के अबाउट, ऐसा वो कह रहा है हर एक वैल्यू को थ्रेशोल्ड मानो, या तो एवरेज को मानो या हर इनको मानो। वो आगे मैं बताऊंगा एवरेज भी आएगा, ठीक है। अभी उसने बोल दिया सिंपल कि अरे असेंडिंग में हमें अरेंज करो और हर एक को थ्रेशोल्ड मानो, ठीक है। ऐसा करके स्प्लिटिंग करो आप, और कोशिश होगी तो मैं इसका न्यूमेरिकल भी आपके सामने लेकर आऊंगा, ओके। ये समझना है, करो और फिर देखो किसमें इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा आ रहा है। और कैटेगरिकल का तो कोई इशू है नहीं, कैटेगरिकल तो इजीली हो जाता है। उन्होंने कहा एनकोडिंग कर दो, वन हॉट एनकोडिंग, यानी यस और नो वाला बोला, यस और नो, तो ये तो हमने कर ही दिया था टारगेट के अकॉर्डिंग, और चेकआउट करा था कितना एंट्री यस में आ रहा है, कितना एंट्री नो में आ रहा है, तो ये तो हमने कर ही था, ठीक। तो स्प्लिटिंग कैटेगरिकल इज नॉट बिग डील, ये तो हो जाता है आराम से, ठीक है। थोड़ा सा उसका ही है न्यूमेरिकल का, फीचर स्केलिंग करना है। तो वैसे यहाँ सपोर्ट वेक्टर मशीन में जैसे बोला गया था, यू नीड टू कन्वर्ट द डेटा इनटू योर, स्केल करो उसको, नॉर्मलाइज करो। तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन वाला तो मुझे नहीं लगा, नॉट नेसेसरी, मुझे लगा भी नहीं, और यहाँ कह भी रहे हैं इट्स नॉट नेसेसरी, स्केल करने की जरूरत नहीं है फीचर्स को। एससीएम डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम थी, तो वहाँ स्केलिंग मुझे करना पड़ा, ये डिस्टेंस बेस्ड नहीं है, ओके। तो यहाँ स्केलिंग का जरूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन मेरा गोल क्या है, सिर्फ इम्प्यूरिटी चेक करना। जहां पर इम्प्यूरिटी कम आ रही है, यदि जीनी की बात कर रहा हूं, तो उसके अबाउट स्प्लिट कर दो, बस यही मेरा गोल है। चाहे तुम्हारा न्यूमेरिकल फीचर्स हो, चाहे तुम्हारा कैटेगरिकल फीचर्स हो, ये काम करना है बस। कोई
हाँ, ओवरफिटिंग पे ये जाता है, ठीक है। ओवरफिटिंग डिसेंट्री का ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, ओवरफिटिंग, ठीक है। अंडरफिटिंग भी देता है ये, ओवरफिटिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका। ओके, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये सारे सैंपल को फिट कर दे, हो सकता है ट्रेनिंग वाले और टेस्टिंग वाले पे फेल हो जाए, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, इट एंड्स विद द ब्रांचेस विद स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ स्पार्स डेटा, यानी कई कुछ सबको एक्सप्लोर कर देगा ये पूरा, कंप्लीट एक्सप्लोरेशन कर देगा, तुम्हें रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, एक्सप्लोरेशन हो गया ये। तो ये ओवरफिटिंग पे चली जाती है बात है कि हाँ भैया मैंने तो सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया, मुझे सब मिल गया, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, तो ऐसे जो हैं, ठीक है, कि वो वाला आउटलायर वगैरह उनको रिमूव करो ताकि ये गलत डायरेक्शन में ना फंसे, ठीक। ऑलराइट, और फिर भाई क्या है, अंडर फिटिंग पे भी जा सकता है। दैट मीन्स मॉडलिंग एरर वेर द फंक्शन डज नॉट फिट ऑल द डेटा पॉइंट्स, सारे डेटा पॉइंट सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, अंडर फिटिंग है। ओके, तो उसमें कहा गया है इफ डेप्थ इज लो दैट इज इक्वल टू 1, यदि 1 डेप्थ तक ही आ रहा है, और दैट इज कॉल्ड अ डिसीजन स्टम्प, यानी सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो आगे, उसको मिल ही नहीं पा रहा कि मैं कैसे करके अपने ट्री को स्प्लिट करूं, दैट इज डिसीजन स्टम्प। ये रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है नेक्स्ट। ये अब अल्गोरिथम्स वाली बात हो गई है, हाउ मच टाइम माई मॉडल विल टेक टू रन ऑन अ मशीन, वे डी इज द डेटा डायमेंशनलिटी यानी कितने फीचर्स हैं, और एन जो है नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स। ओके, तो ये बता रहा है आपका कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, वर्स्ट केस की बात कर रहा है ये, बिग ओ यानी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, एन लॉग एन, डी यानी नंबर ऑफ डायमेंशन, तो हर एक डायमेंशन को सॉल्व करने में इतना तो लगना है उसको, और जितने डायमेंशन उससे और मल्टीप्लाई करो, ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी डिसेंट्री की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रेनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोला मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री, ठीक है, दैट इज द ट्रेनिंग टाइम, इतना टाइम लगेगा उसको। एंड ये है आपका रन टाइम, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री, कितने ट्री तक जाना है, मैक्सिमम डेप्थ कहां तक सॉल्व करना है, ये आपका एक हाइपर पैरामीटर है, दिस यू कैन गिव फ्रॉम योर साइड कि मैक्स डेप्थ आपको कितनी लेनी है, आपको 5 लेवल तक ले जाना है या उसको 10 लेवल तक ले जाना है, दिस इज व्हाट यू कैन गिव, दे सकते हो आप। ओके, किस लेवल तक लेकर जाना है, ठीक। तो भाई ये मेरा डिसेंट्री का बेसिक्स है, जहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने जो मुझे लग रहा था वो मैं सॉल्व करवाया एक क्राइटेरिया लेके। ओके, बट दैट्स नॉट द लीस्ट थिंग इन द डिसेंट्री, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर स्टिल नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड इन डिसेंट्री, जैसे कि अभी हम ये देखेंगे, आपका डिसेंट्री रिग्रेशन मुझे बताना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, अब उसमें मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिसेंट्री रिग्रेशन तो मैं आपको बताऊंगा जहां टारगेट कंटिन्यूस होगा, फिर आप बोलोगे सर इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, जब टारगेट ही कंटिन्यूस, तो वहां भी वही फंडा होगा, वहां भी वही फंडा होगा, जो टारगेट है उसको असेंडिंग में जमा करना पड़ेगा मुझे, फिर उसमें मुझे मीन निकालना पड़ेगा, ओके, और देखना पड़ेगा कौन किसके अभाव, जो मैं कुछ देर पहले बोल रहा था, तो उसके रिग्रेशन में अलग से समझाऊंगा, स्प्लिटिंग जो डिसेंट्री फॉलो करता है वही फॉलो करेगा, ओके। तो अभी आपने आज ये देखा कैटेगरिकल वाला स्प्लिटिंग कैसे होता है, ओके, और उसमें फीचर्स भी कैटेगरिकल थे, तो बड़ा आसानी से टेबल बना बनू के सॉल्व कर दिया। जब फीचर न्यूमेरिकल होंगे तो उसने कहा कि हर एक वैल्यू को थ्रेशोल्ड मानो आप, मीन भी मतलब वो कह रहा है हर एक वैल्यू को थ्रेशोल्ड मानो, और चेक करो कि उस पर मुझे इंफॉर्मेशन गेन कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग, ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, फाइन। तो उसको भी हम आगे कंसिडर करेंगे, देखते हैं यदि मेरे सामने कोई एग्जांपल आ रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा आपके लिए। आज मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को, ठीक है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।